آدھی رات کا وقت ہے، شاید یہ مہینے کی سب سے تاریک رات ہے۔ اندھیرے میں قبروں پر جھکے ہوئے تکونے اور چوکور کتبے سایوں کی طرح لگ رہے ہیں جو قبروں کے اوپر جھک کر ساکت ہو گئے ہیں۔ ہر طرف موت کی خاموشی اور سناٹا چھایا ہوا ہے۔ ایک پر اسرار سی دھند چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے جس نے قبرستان کی ماتمی فضا کو اور زیادہ سوگوار بنا دیا۔ اس خاموشی اور سناٹے میں تھوڑی تھوڑی دیر بعد دبی دبی گھٹی گھٹی ایک انسانی آواز سنائی دے جاتی ہے۔ کبھی یہ آواز ایک لمبی کراہ میں تبدیل ہو جاتی، ایک لمحے کے لیے یہ آواز خاموش ہو جاتی اور اس کے بعد ٹھک ٹھک کی آواز آنے لگتی، جیسے کوئی لکڑی کے کسی تختے کو اکھاڑنے کی کوشش کر رہا ہو۔ قبرستان کی یہ پر اسرار خاموشی میں یہ رونگٹے کھڑے کر دینے والی آواز ایک قبر کے اندر سے آ رہی ہے، اور یہ تازہ بنی ہوئی قبر ہے۔ السلام علیکم دوستو، پیش خدمت ہے افریتی ہارر ناول ایپیسوڈ نمبر 8۔ اتنے مایوس کیوں ہوتے ہو؟ میں نے جب طے کر لیا ہے کہ تمہیں یہاں سے ضرور نکالوں گی تو پھر تم تسلی رکھو۔ یہ بتاؤ کہ افریتی چڑیل کے علاوہ تو یہاں کوئی زرد لاش وغیرہ نہیں آئی؟ جمشید بولا کہ تمہارے جانے کے بعد میرے ساتھ بڑا خوفناک واقعہ پیش آیا تھا، اور پھر جمشید نے آرتی کو سارے واقعات سنا دیے کہ کس طرح اس نے یہ حماقت کی کہ 12 دری میں آ کر نیچے ایک زرد لاش کو دوسری لاش کو کھاتے دیکھ لیا اور لاش سیڑھیاں چڑھ کر اندر آ گئی۔ اس نے ڈر کر 12 دری سے نیچے چھلانگ لگا دی، زرد لاش اس کے پیچھے لگ گئی۔ پھر کسی طرح وہ ایک ویران کھنڈر کے اندر چلا گیا جہاں ایک خوش شکل عورت لکشمی نے اس کی مدد کی اور اسے زرد لاش سے چھپا دیا۔ پھر کیا ہوا؟ آرتی نے پوچھا۔ جمشید نے اس کے بعد جو کچھ ہوا تھا سب بیان کر دیا۔ آرتی بڑے غور سے سنتی رہی۔ جب جمشید نے دہشت ناک واقعہ سنانے کے بعد کہا کہ اب وہاں 1 منٹ بھی نہیں ٹھہرنا چاہتا تو آرتی بولی، میں اسی لیے گئی تھی اور اس کا انتظام کر کے آئی ہوں۔ جمشید نے خوش ہو کر پوچھا، کیا اب میں انسانوں کی دنیا میں واپس جا سکوں گا؟ آرتی کہنے لگی، میں ابھی مردوں اور بدروحوں کی اس دنیا سے باہر نہ جا سکوں گی۔ مجھے اپنے برے کرموں کا چکر اسی جگہ رہ کر پورا کرنا ہوگا، مگر تمہیں یہاں سے نکال کر انسانوں کی دنیا میں ضرور پہنچا دوں گی۔ میں نے اس کا تم سے وعدہ کیا تھا اور میں اسے ضرور پورا کروں گی۔ یہ بھلائی کا کام بھی ہے، اور اس نیک عمل سے میرے برے اعمال کی سزا کا 1000 کا چکر معاف کر دیا جائے گا۔ تم اسی وقت میرے ساتھ چلو۔ جمشید خود اس منحوس کوٹری سے نکلنے کے لیے بے چین تھا۔ وہ فوراً تیار ہو گیا۔ اس نے یہ بھی نہ پوچھا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ آرتی اسے لے کر ٹیلے والی 12 دری کی کوٹری سے نیچے اتر آئی۔ ٹیلے کی دوسری جانب دور جھیل میں ایک کشتی پہلے سے موجود تھی۔ وہ اس کشتی میں سوار ہو گئے اور آرتی چپو چلانے لگی۔ رات کی تاریکی عجیب قسم کی تھی۔ اس تاریکی میں کہیں کہیں زرد روشنی کے دائرے سے پھیلے ہوئے تھے جن کی وجہ سے جھیل پر کہیں کہیں روشنی ہو رہی تھی۔ آرتی خاموشی سے چپو چلا رہی تھی۔ کشتی میں سوار ہونے سے پہلے آرتی نے جمشید کو کوئی بات کرنے اور آواز نکالنے سے منع کر دیا تھا۔ جمشید چپ چاپ کشتی میں بیٹھا جھیل کی سطح کو تک رہا تھا جہاں زرد پانی کہیں نظر آ جاتا اور کہیں اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ کچھ دور جانے کے بعد جمشید کو ایک بہت بڑا سیاہ پہاڑ نظر آیا۔ کشتی اس پہاڑ کی طرف جا رہی تھی۔ جیسے جیسے دیو قامت پہاڑ قریب آ رہا تھا، جھیل کا زرد پانی سیاہ پڑتا جا رہا تھا۔ آرتی اب بڑے احتیاط اور ہوشیاری سے چپو چلا رہی تھی۔ وہ مڑ کر پیچھے پہاڑ کو بھی دیکھ لیتی تھی۔ کشتی پہاڑ کے دامن میں آ گئی جہاں گپ اندھیرا بھی تھا اور کہیں کہیں دھندلی زرد روشنی کے دھبے بھی تھے۔ آرتی نے کشتی ایک جگہ کنارے کے ساتھ لگا دی اور جمشید سے کہا، اب تم بات کر سکتے ہو، مگر خود کوئی سوال مت پوچھنا۔ جو کچھ بتانا ہوگا میں تمہیں بتا دوں گی۔ سیاہ پہاڑ پر بڑا پرہیبت ناک تھا۔
वो आगे को झुका हुआ था, जैसे अभी उनके ऊपर गिर पड़ेगा। उनके इर्द गिर्द स्याह नोकीली चट्टानें उस तरह खड़ी थी कि उनके दरमियान एक तंग सा रास्ता बन गया था। दोनों उसी रास्ते पर चले जा रहे थे जहाँ स्याह चट्टानें ख़त्म हो गई। वहाँ पहाड़ के ऊपर को उठती हुई किला नुमा दीवार में एक और दरवाज़ा सा दिखाई दे रहा था। वो किसी हैबतनाक वीरान किले का दरवाज़ा लगता था। दरवाजे के अंदर से थोड़ी थोड़ी देर बाद जर्द और सुर्ख रंग की धीमी धीमी रोशनी सी चमक जाती थी। आरती जमशेद को एक चट्टान की ओट में ले गई और सर को में कहने लगी, मैं तुम्हें एक काला मोहरा देती हूँ। इसे अपने मुंह में रखने से तुम सवार मेरे और किसी को नज़र नहीं आओगे। गायब होने के बाद जब तक मैं ना कहूँ कोई बात नहीं करोगे, समझ गए? जमशेद ने सरगोशी में ही जवाब दिया, समझ गया हूँ। आरती ने अपनी साड़ी के अंदर से एक छोटा सा काले रंग का मोहरा निकाल कर जमशेद को दिया। जमशेद ने आरती की हदायत के मुताबिक उसी वक़्त मोहरा अपने मुंह में रख लिया। मोहरा मुंह में रखते ही जमशेद को अपना जिस्म नज़र आना बंद हो गया। पहले वो अंधेरे में उस जिस्म को देख लेता था, अब उसे अपना जिस्म दिखाई नहीं दे रहा था। ये उसकी ज़िंदगी का पहला तजर्बा था जिसकी वजह से उस पर थोड़ी सी घबराहट ज़रूर तारी हो गई थी, मगर अब आरती के साथ होने का बड़ा हौसला था। आरती ने पूछा, क्या तुम्हें अपना आप दिखाई दे रहा है? जमशेद ने कहा, नहीं आरती, मेरा जिस्म गायब हो गया है। मैं तुम्हें देख रही हूँ, मेरे सिवा तुम्हें और कोई नहीं देख सकेगा। लेकिन अगर आगे चलकर तुमने कोई आवाज़ निकाली या कोई बात की तो तुम आगे मखलूक है उसको नज़र आ जाओगे और फिर मैं तुम्हें नहीं बचा सकूँगी। जमशेद ने सरगोशी में कहा, आरती तुम फिक्र ना करो, मैं उस वक्त तक अपनी ज़ुबान बंद रखूँगा जब तुम मुझे बोलने की जब तक इजाज़त ना दोगी। आरती कहने लगी, मैं कभी कभी सरगोशी में तुमसे बात कर लिया करूँगी, लेकिन बेफिक्र रहना, मेरी सरगोशी को सवाए तुम्हारे दूसरा कोई नहीं सुन सकेगा। जमशेद बोला, यहाँ मैं सरगोशी में भी तुमसे बात कर सकता हूँ, क्या तुम मुझे ये नहीं बताओगी कि आगे किस किस्म की मखलूक रहती है? आरती ने जवाब दिया, ये तुम्हें उसी मखलूक के दरमियान पहुँचने के बाद अपने आप मालूम हो जाएगा, घबराना मत। वहाँ तुम सबको देख सकोगे, मगर तुम्हें उस वक़्त तक कोई नहीं देख सकेगा जब तक तुम कोई आवाज़ नहीं निकालोगे। इसलिए खामोश रहना। अब हम पहाड़ के दरवाजे में से गुजरने लगे हैं। आरती पहाड़ के द्योकामत दरवाजे की तरफ बढ़ी, जिसके अंदर से किसी किसी वक़्त सुर्ख और जर्द रंग की मध्यम सी रोशनियाँ चमक जाती थी। जमशेद उसके साथ साथ चल रहा था। द्योकामत दरवाजे में दाखिल होते ही जमशेद गड़गड़ाहट की धीमी सी गूंज सुनाई दी और उसके पाँव के नीचे ज़मीन हिलने लगी। आरती ने जमशेद को बाजू से पकड़ लिया और वो वहीं ठहर गई। 3-4 सेकंड के बाद ज़मीन साकन हो गई। आरती दरवाजे में से गुजर गई। अचानक एक डरावनी शक्ल वाली आदमी मखलूक उनके सामने आकर खड़ी हो गई। अब उसकी एक ही आँख थी जो उसके माथे पर थी और उसकी आँख में कभी जर्द और कभी सुर्ख रोशनी निकलती थी। उसका ऊपर का दहाना आदमी का और निचला धड़ किसी गोरीले का था। उसकी एक लंबी दुम भी थी जो ऊपर को उठी हुई थी और उसके सारे जिस्म पर बाल ही बाल थे। उसके एक हाथ में लंबा नेज़ा था जिसके सिरे में से चिंगारियां फूट रही थी। उसके सर पर 2 सींग बाहर को निकले हुए थे। उसने आरती से किसी अजनबी ज़ुबान में कुछ पूछा। ये ज़ुबान ऐसी थी जैसे कोई सांप रुक रुक कर फुंकार रहा हो। आरती ने उसी ज़ुबान में कुछ जवाब दिया। जवाब सुनकर वो डरावनी मखलूक एक तरफ हटकर दीवार में गायब हो गई। आरती जमशेद को लेकर आगे चल पड़ी। जमशेद ने इस किस्म की मखलूक पहले कभी नहीं देखी थी। वो आरती से पूछना चाहता था कि यह मखलूक कौन थी और उसने क्या पूछा था, मगर वो खामोश रहा। आरती ने उसे खामोश रहने की हदायत की थी। जमशेद ने देखा कि वो एक बहुत बड़े गार में से गुजर रहे हैं और उनके इर्द गिर्द अंधेरा है, मगर उन अंधेरों में जर्द और सुर्ख रोशनियाँ ऐसे चमक जाती थी जैसे दूर गहरे बादलों में बिजलियाँ चमक रही हों। चंद कदम चलने के बाद जमशेद को वही आवाज़ें सुनाई देने लगी। ये बड़ी दर्दनाक आवाज़ें थी और जैसे ज़मीन के नीचे से आ रही हों।
चलते चलते गार एक छोटे से मैदान में बदल गया और मैदान में जगह जगह नोकीले पत्थर ज़मीन के अंदर से निकले हुए थे। जमशेद ने देखा कि एक इंसान जिसके जिस्म पर कोई लिबास नहीं था, एक पत्थर की नोक में पेट के बल ऊंधा पड़ा है। पत्थर की नोक उसके पेट में घुसकर कमर से बाहर निकली हुई थी। वो दर्द की शिद्दत से हाथ पांव मारते हुए बिलबिला रहा था और कुछ कह रहा था। उसकी ज़बान जमशेद की समझ से बाहर थी, मगर उसके अल्फाज का मफहूम जमशेद के जहन में अपने आप उतर जा रहा था। वो बदनसीब शख्स रो रो कर कह रहा था, मैंने यतीमों और बेवाओं का हक़ उन्हें ना दिया और ख़ुद खा गया। मुझे मेरे गुनाह की सज़ा मिल रही है। सुनो लोगो, यतीमों और बेवाओं का हक़ ना मारना, मेरी हालत से इबरत हासिल करो। आरती सर झुकाए खामोश कदम उठाती चली जा रही थी। जमशेद उसके साथ ये इबरतनाक मंजर देख कर रुका नहीं, आगे चल दिया। एक जगह क्या देखता है कि एक आदमी का निचला धड़ ज़मीन में धंसा हुआ है। वो आदमी, दो आदमी उसके दाएं बाएं खड़े उसके सर को हथौड़ों से कुचल रहे हैं। जब उसकी खोपड़ी कुचल कर उसकी गर्दन से चिपक जाती है तो वो उसके सर को उसकी गर्दन में से निकाल कर सीधा कर देते हैं और दोबारा उसके सर पर हथौड़े मारने लगते हैं। वो शख्स रो रो कर कह रहा है, मैं दहशतगर्द था। मैं दुश्मन मुल्क से पैसे लेकर लोगों के घरों में घुसकर सोते हुए बेगुनाह बच्चों, औरतों और मर्दों के सरों को हथौड़ों से कुचल कर मार दिया करता था। ये मुझे मेरे उस गुनाह की सज़ा मिल रही है। लोगों, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। उसके आगे जमशेद की निगाह बाएं जानब उठी तो उसने देखा एक जगह एक आदमी लोहे की जंजीर के साथ बंधा उल्टा लटक रहा है और उसके नीचे जहन्नम की आग के शोले भड़क रहे हैं। दो सींगों वाले आदमी नुमा मखलूक दाएं बाएं खड़ी है और भड़कती आग में नेज़े सुर्ख करके उसके जिस्म को दाग रहे हैं। बदकिस्मत शख्स की चीखों पुकार से दिल दहल रहे हैं। नीचे जहन्नम की आग के शोले जब उसके आधे धड़ को जलाकर राख कर देते हैं तो अपने आप उसका निचला धड़ दोबारा वजूद में आ जाता है और जहन्नम के शोले उसे फिर से जलाने लगते हैं। चीखों पुकार में वह बदनसीब आदमी एक ही बात बार बार दोहरा रहा है, मैं मासूम बच्चों को अगवा करके बर्दा फरोशों के पास बेच दिया करता था। कोई बच्चा अगर शोर मचाता था, रो रो कर अपनी अम्मी को पुकारता था तो मैं उसे वहीं गला दबाकर मार दिया करता था। ये मुझे मेरे उन गुनाहों की सज़ा मिल रही है। लोगों, मेरी हालत देखो, मेरी हालत से इबरत हासिल करो। चंद रोज़ की ज़िंदगी के ऐश की खातर क़यामत तक के अज़ाब मूल ना लो। ये बदनसीब शख्स बिलबिला कर रो रो कर उन माओं से माफ़िया मांग रहा था जिनके बच्चों को उसने अगवा करके मार डाला था, मगर वहाँ उसकी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं था। जमशेद पर इक्कत तारी हो गई थी कि आरती उसका बाजू पकड़कर आगे ले गई। थोड़ा आगे चलने के बाद जमशेद ने देखा चट्टान के एक शगाफ में सींगों वाली मखलूक ने एक आदमी को लोहे के शिकंजे में जकड़ रखा है। उसका मुंह लोहे के एक और शिकंजे की वजह से पूरा खुला हुआ है। शगाफ के अंदर आग ही आग है। सींगों वाले दो आदमी उस आग में से बेलचे भर भर कर दहकते हुए अंगारे लाते हैं और उस बदनसीब आदमी के मुंह में डालते जाते हैं। उस आदमी के हलक से रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज़ें निकल रही थी। ये आवाज़ें अल्फाज बनकर जमशेद के जहन में उतर रही थी। वो उन अल्फाज का मफहूम ये था, लोगों, मैं झूठी गवाहियाँ दिया करता था। मेरी झूठी गवाहियों से कई कातिल बच गए और कई बेगुनाह फांसी लग गए। मुझे मेरे उसी घिनौने गुनाह की सज़ा मिल रही है। अब आगे मैदान तंग होते हुए दोबारा गार की शक्ल इख्तियार कर गया। आरती गार के किनारे किनारे चल रही थी। जमशेद गैबी हालत में उसके साथ साथ चल रहा था। उसका दिल इबरत के उन मनाजर को देखकर अभी तक खौफ खुदाबंदी से लड़ रहा था। आगे चंद कदम चलने के बाद जमशेद को गड़गड़ा कर माफ़िया मांगने की अलम अंगेज़ दर्दनाक आवाज़ सुनाई दी। फिर उसने देखा कि गार की पथरीली दीवार के साथ एक आदमी कमर के बल चिपका हुआ है और उसकी टांगें और बाजू दीवार में धंसे हुए हैं। सिर्फ सर और पेट पथरीली दीवार के बाहर है। उस आदमी के मुंह से खून की नदियां बह रही हैं। उसका पेट फूल कर कुप्पा हो रहा है। फिर एक धमाके के साथ उसका पेट फट जाता है, आंतड़ियाँ बाहर आ जाती हैं।
एक तरफ से कितने ही सांप निकल कर उसके पेट में घुस जाते हैं और उसके अंदर का गोश्त और दिल गुर्दे निकाल कर खाना शुरू कर देते हैं। जब उसके जिस्म का सारा गोश्त खा जाते हैं तो सांप बाहर निकल कर गायब हो जाते हैं। दूसरे ही लम्हे उसका पेट असली हालत में आकर दोबारा फूलने लगता है। जब वो बड़े गुबार की तरह फूल जाता है तो धमाके से फट जाता है और आंतड़ियाँ बाहर निकल कर बिखर जाती हैं और इसी तरह हर तरफ से वही सांप फिर निकल आते हैं और उसके पेट में घुसकर उसकी आंतड़ियाँ गोश्त और जिस्म के अंदर के दूसरे अज़ा खाना शुरू कर देते हैं। उस बदनसीब के खून आलूद मुंह से दर्द व करब की फलक शिगाफ चीखें निकल रही हैं और वो एक ही बात बार बार दोहराए जा रहा है, मैं चीज़ों में मिलावट करता था। स्कूल के बच्चों की टॉफ़ियों और बच्चों के मशरूबात में जहरीले केमिकल शामिल कर दिया करता था। मैं बच्चों को पिलाने वाले खुश्क दूध में सफ़ेद पत्थर पीस कर डाल देता था। मैं नकली दवाएं तैयार करता था। मेरी नकली दवा ने कई मरीज़ों की जान ले ली। मेरे नकली टीके लगाने से कई इंसान मौत के आगोश में चले गए। मकाफ़ात अमल के इस इबरतनाक मंजर को देखकर उस पर खौफ तारी हो गया था। आरती उसे आगे ले गई। आगे चलकर एक बार फिर छोटा सा मैदान आ गया। जमशेद ने देखा कि एक सर से पांव तक नंगा आदमी एक दायरे की सूरत में दौड़ रहा है। 10-12 खौनख्वार भेड़िए उसके पीछे दौड़ रहे हैं। खौनख्वार भेड़िए उस आदमी पर छलांगे लगाकर उसे गिरा देते हैं और उसके गर्दन, पेट और टांगों को खाना शुरू कर देते हैं। बदकिस्मत आदमी वावीला मचाता है, मदद के लिए पुकारता है, मगर भेड़िए का सारा गोश्त चट करके उसे हड्डियों का पिंजर बनाकर छोड़ कर चले जाती हैं और उनके जाने के बाद उस आदमी में फिर से जान पड़ जाती है और दोबारा वही अमल शुरू हो जाता है। आरती उसे बाजू से पकड़कर अपने साथ लेकर आगे बढ़ी और उसके कान में सरगोशी करते हुए कहा, ये आदमी रिश्वतखोर था, रिश्वत के लेकर हकदारों के हक गदब करता था, हराम की कमाई से अपना पेट भरता था। जमशेद सरगोशी में कुछ पूछने ही लगा कि आरती ने उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे चुप कराया और उसके कान के पास अपना मुंह ले जाकर कहा, तुम्हारी सरगोशी भी यहाँ की मखलूक सुन सकती है, बिल्कुल खामोश रहो, किसी मुसीबत में ना फंस जाना। अचानक जमशेद की निगाह एक गार के दहाने पर पड़ गई। उसने गार के दहाने में अपने आप को इस हालत में देखा कि वो आधा ज़मीन में धंसा हुआ था और 2 खौफनाक शक्लों वाली मखलूक उसके सर पर आरा चला रही थी। अपने आप को इस हालत में देखकर जमशेद बदहवासा हो गया और उसके मुंह से बेइख्तियार निकल गया, आरती, ये मैं हूँ, ये सब क्या है? इतना कहना था कि उस गार में से धुएं का एक बरक रफ्तार बगोला ज़बरदस्त गूंज के साथ निकला और आनन फानन जमशेद को अपनी लपेट में लेकर गार में जाकर गायब हो गया। आरती सिर्फ जमशेद की आखिरी चीख ही सुन सकी। वो दम बखुद सी होकर उसी जगह खड़ी गार को देखती रही। आखिर वही हुआ था जिसका आरती को डर था। वो जानती थी कि जादूगर नस्तूर की बदरू और इफरीती डायन जमशेद का पीछा कर रही है और उसे सिर्फ उसके बोलने का इंतज़ार कर रही है। इसलिए आरती ने जमशेद को सख्ती से मना किया था कि वो आवाज़ ना निकाले, लेकिन अपने दूसरे वजूद को अजाब में मुब्तला देखकर वो बेइख्तियार बोल उठा और नस्तूर जादूगर या इफरीती डायन जो उसी लम्हे के इंतज़ार में थी, जमशेद के बोलते ही उसे उठा कर ले गई। अब वहाँ खुद आरती का ज़्यादा देर रुकना ख़तरे का बाइस बन सकता था। वो जमशेद की कोई मदद नहीं कर सकती थी, उसे अपनी जान बचाने की फ़िक्र थी। चुनाचा आरती उसी वक्त गायब हो गई। जमशेद को जिस वक्त धुएं के मरगोले ने अपने अंदर लपेटा था तो वो गैबी हालत में था, लेकिन अपने होशो हवास में था। धुएं के चकराते हुए मरगोले के साथ वो भी गर्दश करता गार में चला गया था और अभी तक वो धुएं की तूफ़ानी लहरों के साथ गर्दश कर रहा था। कुछ देर के बाद जैसे किसी ने उसे धुएं से निकालकर ज़मीन पर पटक दिया। ज़मीन पर गिरते ही वो अपनी इंसानी जिस्म में वापस आ गया। उसने देखा कि वो ज़मीन पर चित लेटा है, वो ज़िंदा है मगर अपने हाथ पांव नहीं हिला सकता। अचानक इफरीती डायन उसके सामने ज़ाहिर हो गई।
इफरीती डायन की गर्दन दरख्त के साथ फांसी लगने की वजह से लंबी हो चुकी थी और वो खौनखवार आंखों से जमशेद को देख रही थी। उसने अपनी डरावनी आवाज़ में कहा, मैं जानती थी कि तुम मुझसे बच नहीं सकोगे। इफरीती डायन का कोई दुश्मन उसके इंतकाम की आग से ज़िंदा नहीं बच सका, तू भी ज़िंदा नहीं बचेगा। इफरीती डायन ने गुस्से से फुंकारते हुए जमशेद की तरफ अपने हाथ का इशारा किया और उसके नोकीले नाखूनों में से बिजली की कड़क के साथ तेज़ लहरें निकलकर जमशेद के जिस्म पर पड़ीं और वो ज़मीन में धंसने लगा। उसे लंबी गर्दन वाली इफरीती डायन सामने खड़ी कहके लगाती नज़र आ रही थी। उसकी गर्दन में वो रस्सी अभी तक लटकी हुई थी जिससे उसे फांसी दी गई थी और उसे फांसी के सिर्फ इसलिए दी गई थी कि जमशेद ने उसका चिल्ला पूरा नहीं किया था और चिल्ला उलट गया था। वो आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन के अंदर चला गया और उसे निगलने के बाद ज़मीन ऊपर से बराबर हो गई। जमशेद का सांस चल रहा था। उसने आंखें बंद कर लीं और उसे अपने जिस्म पर चारों तरफ से और ऊपर की तरफ से ज़मीन का दबाव महसूस हो रहा था। वो अभी तक ज़मीन में धंसता चला जा रहा था, फिर अचानक गिर पड़ा जैसे छत से नीचे गिर पड़ा हो। उसने आंखें खोलकर देखा, वो एक तंग सुरंग में पड़ा है जो चारों तरफ से गोल है और उसके जिस्म की ताकत वापस आ गई थी। वो उठकर बैठ गया। उस गोल कब्रनुमा सुरंग में वही जर्द जर्द सी धुंधली रोशनी फैली हुई थी। उसने सुरंग की दीवार को हाथ लगाकर देखा। सुरंग की गोल दीवार पत्थर की तरह सख्त थी। ऊपर 3-4 फुट की ऊंचाई पर गोलाई नुमा छत उस पर इस तरह झुकी हुई थी जैसे अभी उस पर गिर पड़ेगी। उसको अचानक माता के काले बिच्छू का ख्याल आ गया। उसने जल्दी से आस्तीन चढ़ाकर बाजू को देखा। बाजू पर से माता का बिच्छू गायब हो चुका था। उसे माता के बिच्छू के गायब होने का कोई अफसोस ना हुआ। मुर्दों की उस ज़मीन दो दुनिया में मकाफात अमल के वो इस कदर इबरत अंगेज़ और रोंगटे खड़े कर देने वाले मनाज़र देख चुका था कि अब उसका किसी देवी देवता और किसी माता के बिच्छू पर एतकाद नहीं रहा था। उसने अपनी आंखों के सामने देख लिया था कि इंसान को उसके बुरे अमाल और गुनाहों की सज़ा मिलकर रहती है। अगर किसी वजह से दुनिया में वो सज़ा से बच जाता है तो उसे मरने के बाद वो सज़ा भुगतनी पड़ती है और कोई देवी देवता, किसी माता का बिच्छू उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। उसे हर हालत में अपने गुनाहों की सज़ा भुगतनी ही पड़ती है। वो खुद ही अपने गुनाहों की सज़ा भुगत रहा था। उसने काले जादू सिफली अमल से और सीधी राह से भटके हुए लोगों को काले जादू के चिल्ले बताकर कई इंसानों की ज़िंदगियां बर्बाद की थीं। उसके जादू चुने से कुछ बेकसूर इंसान मौत के आगोश में भी चले गए थे। जमशेद को अपने सारे गुनाह याद आने लगे और वो मौत के बाद अपने इबरत अंगेज़ अंजाम से खौफज़दा हो रहा था। उसका ताल्लुक़ आतिश परस्तों के मज़हब से था। उस मज़हब के मानने वाले हमेशा से अग्नि देवता की पूजा करते आए थे, लेकिन अब जमशेद का उन देवताओं पर से एतकाद उठ गया था। लेकिन उसे इस हकीकत का एहसास हो गया था कि आसमानों के ऊपर एक और भी ताकत है जिसके तराजू के पलड़े हमेशा बराबर रहते हैं। उन पलड़ों में हर इंसान के अमाल को तोला जाता है। नेक अमल करने वालों को उनके नेक अमाल की जज़ा मिलती है और बद किरदारों को उनके बुरे अमाल की सज़ा मिलकर रहती है। वो कैसे कुदरत के इस अटल कानून पर यकीन ना करता। उसने तो सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया था। उसे अपने गुनाह एक एक करके याद आने लगे थे और अपने अंजाम से कांप उठता था। लेकिन अभी उसे इस गोल कब्रनुमा सुरंग से बाहर निकलना था। इफरीती डायन ने उसे यह कहकर कब्र में बंद कर दिया था कि यहाँ तू बार बार मरेगा और बार बार जिंदा होगा। मगर उसके दिल को न जाने कैसे यकीन हो गया था कि वो इस मनहूस दैर ज़मीन दुनिया से ज़रूर बाहर निकलेगा और कुदरत उसे उसके गुनाहों का कुफ़ारा अदा करने और ज़िंदगी में ही तौबा करने का एक मौका ज़रूर देगी। वो झुक कर कब्रनुमा सुरंग की दीवारों को गौर से देखने लगा।
گول دیوار کی سطح ہموار نہیں تھی، لیکن پتھر ایک دوسرے کے ساتھ پختگی سے جڑے ہوئے تھے۔ یہ قبر نما جگہ بالکل شہد کی مکھیوں کے چھتے کے خانے کی طرح تھی جو چاروں طرف سے بند کر دیا گیا تھا۔ جب جمشید کو دیوار میں سے کوئی جگہ نظر نہ آئی تو وہ نا امید ہو کر بیٹھ گیا اور سوچنے لگا اب اسے کیا کرنا چاہیے اور وہ کیا کر سکتا ہے۔ اسے آرتی کا خیال آ رہا تھا، وہ بھی یہاں اس کی مدد کو نہیں آ سکی تھی۔ اس نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ زبان سے کوئی لفظ نہ بولنا، آواز نہ نکالنا، ورنہ کسی نہ کسی مصیبت میں پھنس جاؤ گے، اور پھر میں بھی تمہاری کوئی مدد نہ کر سکوں گی۔ جمشید کو احساس تھا کہ اسے ایک بار پھر غلطی ہو گئی ہے، مگر اپنے آپ کو عذاب میں مبتلا دیکھ کر بے اختیار اس کی زبان سے الفاظ نکل گئے تھے۔ اب اسے احساس ہوا تھا کہ یہ سب کچھ اس کا وہم تھا۔ عفریتی ڈائن نے اسے اپنے قابو میں کرنے اور اس سے انتقام لینے کی خاطر اس کے سامنے اس کے ہم ہریولے کو عذاب میں مبتلا کر کے دکھا دیا تھا، ورنہ اس میں کوئی حقیقت نہیں تھی، کیونکہ جمشید تو ابھی زندہ تھا۔ وہ انسانوں کی دنیا کے زندہ انسانوں کی طرح زندہ تھا۔ موت کے بعد ابھی اس کے گناہوں کی سزا کا عمل شروع نہیں ہوا تھا، لیکن اس کی تقدیر میں ایسا ہونا لکھا تھا اور ایسا ہو گیا تھا۔ یہ اس کے گناہوں کی وہ سزا تھی جو اسے دنیا میں ہی مل رہی تھی، اور اس کے سزا کو وہ آئندہ گناہ نہ کرنے اور توبہ کرنے سے کم کر سکتا تھا۔